याद है? आपको आवाज नहीं आ रहा है? कांट हियर यू। म्यूट पर है आप। I think we finished reading the Saptashitihi. We finished reading the lesson, I think, right? Yes. And we are now going to go through the entire lesson. We will start. Right? Is there any dictionary available for Sanskrit words? Yes, your question answer is yes. There is a dictionary available. Very famous is very old dictionary. Maybe a 100 years old. It is from Apte. The dictionary is written by Apte. APT. It is available in the shops. Okay. Available in the shops, or online you can go to a website. It was earlier. It was. I'll write it for you. You want to send me the link? I've sent you a link already. Okay. नहीं, I have sent a link to you. मैंने भेजा है लिंक आपको? नहीं भेजा है ना, मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ। और it used to be called spoken Sanskrit. Spoken Sanskrit.de. अब ये चेक कर, इधर आप ये स्पोकन संस्कृत .de डालेंगे ना, मैं आपको लिंक भेजूंगा। बट इफ यू पुट स्पोकन संस्कृत .de as in Deutschland, Germany, तो आपको वो लिंक लेके जाएगा। अभी उसका नाम कुछ बदल गया है, learnsanskrit.com या समथिंग, लेकिन मेरे को बराबर याद नहीं, लेकिन लिंक भी भेजूंगा आपको मैं। बट यू कैन टाइप स्पोकन संस्कृत.de, बट using a Sanskrit dictionary is very tricky. आप समझे, आपको एक्यूरेट मीनिंग शायद नहीं मिले। वेरी संस्कृत में शब्दकोश वापरना ना इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब। Some reference. हाँ, you get some idea, but you can't really 100% आप उसको पकड़ के जा नहीं सकेंगे। Okay. Let's begin. Let's learn this. What this story? This is a story about Shri Krishna, Balarama, and Satyaki. Right? Let's see. Ekada Shri Krishna, Balarama, Satyaki. See all these words. Shri Krishna. Right? What vibhakti they are in? Shri Krishna. Balarama. What vibhakti do you think these are in? सात्यकी ही। ये सब कौन सी विभक्ति में है? उत्तम नहीं, विभक्ति। व्हाट विभक्ति? डोंट दे, आर दे नॉट इन प्रथमा विभक्ति, फर्स्ट विभक्ति? हम जो पढ़े थे, श्री कृष्ण, कृष्णौ, कृष्णाः, प्रथमा विभक्ति ना? दे आर इन प्रथमा विभक्ति, करेक्ट? ऑल द थ्री वर्ड्स आर इन प्रथमा विभक्ति। तो उससे हमको क्या भास होता है कि they are all the karta, they are all the doers of some action, right? प्रथमा विभक्ति किसमें यूज करते हैं हम लोग? जब we want to show that that whatever the thing is doing some work, is doing an action, then we'll put it into prathama vibhakti, correct? So Shri Krishna, Balarama, Satyakihi cha, only one cha, right? जिसको किसको आपको ऐड करना है लिस्ट में, वो सबका नाम लेना, बाद में एंड में च ऐड करना, right? च वन विहारार्थम, वन विहार, see how many words are there? वन, correct? विहार and अर्थ, correct? 3 words are there. One forest,
vihara घूमना, right? The action of going around. So वन में घूमने के लिए वन विहारार्थम, the meaning भोजनार्थम, you know ना, भोजनार्थम खाने के लिए, right? पठनार्थम पढ़ने के लिए, right? So वन में घूमने के लिए गए थे, गतवन्तः, you know, you got your इक्तवतु प्रत्यय, right? We know ना, we studied गतवान for एकवचन, गतवन्तौ द्विवचन, एंड बहुवचनम गतवन्तः. Here बहुवचन होना चाहिए ना, तीन लोग है ना, श्रीकृष्णः बलरामः सात्यकिः. So जनाः त्रयः सन्ति, अतः बहुवचनम. गतवन्तः आसन्, had gone. Once एकदा श्रीकृष्णः बलरामः सात्यकिः च वनविहारार्थं गतवन्तः आसन्. आसन्, we know now. See, you got a riktavatu pratyaya also, and you have got the active verb also, asan. So you know, we can say had gone. हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं had gone. For going around in the forest, for roaming in the forest, right? वन विहार के लिए गए थे, right? आसन, अस धातु, we know ना, अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचनम आसन, आसीत, आस्ताम, आसन, ये पढ़ा था ना हमने. आसन, क्यों आसन वापरा गया है? Because you got three people there. You have three people ना. We had got asit. Remember, we had got asit for ekavachanam, astham for dvivachanam, asan bahuvachanam. And why bahuvachanam? Because there are three people. Correct? वने ते मार्गभ्रष्टाः जाताः. वने, we know वने, what is the vibhakti? You know, in the forest. सप्तमी एकवचनम. करेक्ट? वने, you know, वने. We know ते also, we know ते, तद, प्रथमा विभक्ति, बहुवचनम, सह एकवचनम, तौ द्विवचनम, ते बहुवचनम. Three people are there, right? So हमारा इंग्लिश में दे, सॉरी, इंग्लिश में ते बोल, वने सप्तमी विभक्ति ना, वने सप्तमी एकवचनम, राइट? वने, वनयोः, in two forests, in one forest, in two forests, वनेषु, in many forests, right? So वने सप्तमी एकवचनम. Good. वने ते, they, what happened to them? ते मार्गभ्रष्टाः. Very beautiful. You know, in Sanskrit में ये हो सकता है. This kind of usage is possible. मार्ग, see, भ्रष्ट, right? मार्ग भ्रष्ट. No, भ्रष्ट means, literally means खराब होना, to get spoiled. Okay? भ्रष्ट होना मतलब to get spoiled, बिगड़ जाना, खराब होना, right? So उनका मार्ग खराब हो गया, तो मार्ग भ्रष्ट मतलब they lost their way. In English you say they lost their way. राख हो गई उनकी. Right? So they margabhrashtaha. Margabhrashta pratipadikam is an akaranta pratipadikam, akaranta pullinga pratipadikam. So बहुवचन में very simple ना, margabhrashtaha, margabhrashtau, margabhrashtaha. Clear? You know, for example, if there is a book,
right? I go to a library where there are many books, right? ऐसे रखे रहते हैं ना many books, right? तो कोई जाता है एक बुक एक रैक से उठाता है और गलती से दूसरे रैक में जाके डाल देता है, पॉसिबल है ना? तो so we'll call the book as स्थान भ्रष्टम पुस्तकम. अब सब स्थान भाष्य. हाँ, जिसका स्थान भ्रष्ट हो गया उस प्रकार का पुस्तक स्थान भ्रष्टम पुस्तकम. उत्तम. See how beautiful the language is. आप एक शब्द में बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं. जिसका स्थान भ्रष्ट हो वो स्थान भ्रष्ट, और स्थान भ्रष्टम पुस्तकम अकारांत नपुंसकलिंग. So स्थान भ्रष्टम पुस्तकम. In one word you are told whatever you want to tell. So in short in English बोलेंगे हम लोग lost book. लेकिन lost में वो चीज नहीं है जो स्थान भ्रष्ट में है. Lost बोले तो can need not mean anything specific. Right? ये स्थान भ्रष्ट बहुत स्पेसिफिक है. Okay. So similarly मार्ग भ्रष्टाः जाताः, जाताः, जातः, जातौ, जाताः. जिसका जन्म हुआ वो जात, जिसका जन्म हुआ ना वो जात. तो जातः, जातौ, जाताः. So वो क्या हुए? निर्मित हुए. कैसे निर्मित हुए? मार्ग भ्रष्ट होके निर्मित हुए. राइट? तो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हैपेंड, टू हैपन. राइट? तो फॉर एग्जांपल वृष्टि ही जाता, बारिश हो गई. क्यों जाता? बिकॉज वृष्टि इज स्त्रीलिंग पदम. वृष्टि इज स्त्रीलिंग, सो जाता. आप समझे? जात, जात, दिस कैन बी यूज्ड फॉर टू हैपन. राइट? वृष्टि हुई, वृष्टि ही जाता. राइट? भूकंपः जातः, earthquake happened. Right? Very beautiful way to use it without using a verb. See, this is not a verb. Jata is not a verb. Right? So any action जो हुआ है वो बताने के लिए you can use jata as like an adjective. Like an adjective. Okay? Good? Okay. Okay. Next is वने ते मार्गभ्रष्टाः जाताः. निबिडम वनम, निबिडम thick, वनम forest. Right? निबिडम, निबिड thick forest, dense forest. निबिड dense or thick. Right? निबिडम वनम प्रविष्टवन्तः. You know, you got another iktotu pratyaya there used. प्र लट लकार में प्रविशति. Enter, we know, no? Pravesha. We know the word pravesha. Correct? So now इसका इक्तवतु प्रत्यय क्या होता है? प्रविष्ट, एक वचन में प्रविष्टवान. राइट? द्विवचन में प्रविष्टवन्तौ. एंड इन बहुवचन, ये बहुवचन है, तीन लोग है ना इधर, यहाँ पर तीन लोग है ना. प्रविष्टवन्तः. गुड. कैन यू हियर मी? Okay. प्रविष्टवन्तः. राइट? So ते निबिडम वनम प्रविष्टवन्तः. Right? They entered a dense forest. निबिडम वनम प्रविष्टवन्तः. Right? क्या हुआ? रात्रि ही संजाता. Another word for happen. Happened.
सम उपसर्ग जाता, right? जाता है यहाँ पर. See, रात्रि is an इकारांत स्त्रीलिंग पदम. रात्रि ही is an इकारांत स्त्रीलिंग पदम. So night happened, night रात्रि हुई, right? So see, संजाता, a very nice way of saying, पूरे तरह से रात्रि हुई, right? In मतलब it was not twilight, it was dark. It's dark. रात्रि ही संजाता, right? Good. Okay, let's go further. Clear? Night happened, night befell. तैहि रात्रिः रात्रिं यापयितुम् एकस्य वृक्षस्य अधः उपवेष्टव्यम् आपतितम्. Very complicated grammar. This is not which I can teach you at this stage. ये sentence हम मैं आपको सिखा नहीं सकूंगा because there are so many things have happened. मतलब ये तो शायद हमको 2 साल लगेंगे इसका व्याकरण समझने के लिए, ये सेंटेंस का. लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, इसमें ट्रांसलेट करूंगा. Yes. बट एक चीज ये है कि आप इसका एक क्या बोलते हैं, एक ऊपर से अर्थ जान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूं, यापयति, द वर्ब यापयति is to spend time, right? See, you got a word here, ratri. We know ratri means night, right? We don't know taihi क्या है, पता नहीं हमारे को. We don't know at this stage. We don't even know. We are going to study about taihi. This word taihi, we are going to study. This is tritiya vibhakti, बहुवचनम. Yes. We are study after a few months. ये है तृतीया विभक्ति, हम लोग पढ़ेंगे ये बुक में. लेकिन I can't tell you now what is taihi, right? But roughly, you can guess the meaning. Taihi ratrim yapayitum. Pata tautei, we have already. No, we have done saha, tau, te. We have not done taihi. तैही कहाँ किया हमने, right? So it's okay, doesn't matter. But आपको एक roughly, looking at the sentence, you must get a feel मतलब आप समझे, आपको एक अंदाज होना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है. So तैही रात्रिम यापयितुम, I told you यापयति is to spend time, right? Correct? एकस्य वृक्षस्य, this we know already. ये तो हमको पता है कौन सी विभक्ति है. एकस्य वृक्षस्य, बोलिए. षष्ठी. षष्ठी, वेरी नाइस. षष्ठी एक वचनम, करेक्ट. अधः, we know अधः always takes षष्ठी. अधः means नीचे, below. अधः always takes षष्ठी. So एकस्य वृक्षस्य अधः means what? Can you tell me what it means? एक वृक्ष के नीचे. Very simple. Correct. उपवेष्टव्यम, उपविशति. See, we have to see similar words what we have studied. What is उपविशति? बोलिए. Have to get up. No. To sit. To get up is उत्तिष्ठति. To get up is उत्तिष्ठति. उपविशति is to sit. Right? उपविशति is to sit. उपवेष्टव्यम, ये इसमें से निकला हुआ है शब्द, राइट? आपतितम, आपतितम, उनके ऊपर आ पड़ी. हम बोलते हैं ना, हिंदी में नहीं बोलते, उसके ऊपर आपदा, आ पड़ी. you don't have that meaning, आ पड़ी in हिंदी, करेक्ट? तो ये तो एग्जैक्टली सेम है. आ और पत इज टू फॉल. तो आप इसका एक ये वाक्य का क्या अर्थ लगा सकते हैं, बताएंगे? रात को स्पेंड किया उन्होंने पेड़ के नीचे. ओके, वेरी नाइस.
और थोड़ा मैं आपको इसका अर्थ नहीं, लेकिन ये आ पढ़ी कहाँ आ गया इसमें? मैंने आपको बोला ना आपतितम इज योर हिंदी की, आप इंग्लिश में बोलना पॉसिबल नहीं है। ये इंग्लिश में बोलना ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हिंदी में बहुत आसान है। आप पढ़ी, हम बोलते हैं ना आप पढ़ी, किसके उसके ऊपर आपदा आ पड़ी, इसके ऊपर बुरा काल आ पड़ा। इंग्लिश में, हिंदी में तो बोलते हैं ना वैसे। So can you use this आ पड़ी and translate this sentence into Hindi? आप सोच सकते हैं। See, there are how many components are there? Night, रात्र, रात, right? बिताने का, correct? ये भी आ गया ना, मीनिंग आ गया ना, बराबर। वृक्ष, एक वृक्ष के नीचे, वो भी आ गया। बैठना, वो भी आ गया। आ पढ़ना, आ पढ़ी, वो भी आ गया। अब बताइए what can be the meaning with this? अभी रात हुई थी, अंदर वन में पहुंच गए ये लोग, रास्ता भटक गए, राइट? तो उनके ऊपर आ पड़ी, क्या आ पड़ी? रात बिताना एक वृक्ष के नीचे, एक वृक्ष के नीचे बैठकर रात बिताना उनके ऊपर आ पड़ी। आप समझे? आर यू एबल टू गेट द एक्यूरेट मीनिंग विदाउट नोइंग द ग्रामर? आपको इसमें ग्रामर का कोई अंदाज नहीं है कि ये सब वर्ड्स क्या है, कैसे बनाए गए हैं। अगर आपको एक दूसरा वाक्य बनाए तो नहीं बना पाएंगे, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द सेंटेंस? आपने काफी अच्छा बोला कि रात उन्होंने वृक्ष के नीचे बिताई, so that's also good, but means you have understood the एक मोटा मोटी आपको इसका वाक्य का अर्थ समझ गया, correct? That is the aim of our study, is to understand the language. ग्रामर ठीक है, करेंगे, ग्रामर भी करना चाहिए, क्योंकि आपको दूसरे वाक्य भी बनाने हैं ना। सपोज आपको बोलना है कि आपको मुंबई जाने की आ पड़ी। कैसे बोलेंगे, राइट? ओके, सो तैहि रात्रिम यापयितुम एकस्य वृक्षस्य अधः उपवेष्टव्यम आपतितम। उनको मतलब जबरदस्ती एक वृक्ष के नीचे, मतलब दे डिडंट वांट टू सिट देयर, जिसको रात बितानी है वृक्ष के नीचे, करेक्ट? लेकिन कोई और चारा नहीं था, देयर वाज नो अदर वे, दे हैव टू स्पेंड द नाइट, जब तक कि फिर वापस सूर्योदय नहीं हो, प्रकाश नहीं हो। कुछ तो करना है ना, कहीं तो और भटक जाएंगे, ये तो ऑलरेडी भटक गए रास्ता, और भटक जाएंगे। तो एक जगह बैठ के राह देखो ना कि कब सूर्योदय हो जाए, राइट? सो आपतितम का आपको अर्थ समझा? उनके ऊपर आ पड़ी। रात्रो, वी नो व्हाट इज द विभक्ति ऑफ रात्रो, ये हमने पढ़ा है। रात्रो क्या है बताइए? सप्तमी एकवचनम ऑफ रात्रि, राइट? इन द नाइट, रात्रि, रात में, राइट? रक्षणार्थम, रक्षा करने के लिए, विनो ना, भोजन करने के लिए। हम अभी कर थे वन विहारार्थम, रक्षणार्थम रक्षा करने के लिए, भोजनार्थम भोजन करने के लिए, करेक्ट? वन विहारार्थम वन में विहार करने के लिए, तो रक्षणार्थम, ऑल दिस अर्थम है ना जो लास्ट, तो उसको रक्षण करने के लिए। गुड। रात्रो रक्षणार्थम एकैकः, मतलब एक करके बोलते हैं ना हम लोग, एक एक करके आओ। एकैकः इज एकैकः, तो ये वृद्धि संधि से ये एकैकः होता है। यहाँ अ प्लस आई है ना, ये रिजल्ट होता है आई। सो एकैकः, एकैकः अपि पर्याय रूपेण इन टर्न्स, समझे? इन टर्न्स,
In turn. इन टर्न्स बोलते हैं ना, पर्याय, पर्याय इज ए टर्न। मतलब अगर 10 लड़के खड़े हैं तो एक पूछता है मम पर्यायः वा, मेरा टर्न है क्या, मम पर्यायः, एंड टीचर सेज ना, तव पर्यायः नास्ति, तस्य पर्यायः, उसका पर्याय, आपका टर्न नहीं है, उसका टर्न है। सो टर्न, टर्न बोलते हैं ना हम लोग। सो पर्याय रूपेण, as an alternative, in turns, right? पर्याय रूपेण एकम प्रहरम। अच्छा, प्रहर क्या है? 3 घंटे। एक प्रहर जो है तो होता है ना, 1 प्रहर is 3 hours। 3 hours. Okay. 3 hours is प्रहर। सॉरी। अपि पर्यायेण रूपेण एकं प्रहरं यावत् जागरितः भवेत्। सो इन टर्न्स, एक एक करके, एक ये 3 घंटे ये जागेगा, बाद में वो सो जाएगा, दूसरा जागेगा, बाद में वो सो जाएगा, तीसरा जागेगा। तो 3 प्रहर हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। जो अंधेरा होता है वो 3 प्रहर के लिए होता है जनरली। जो डीप डार्क, एकदम डार्क होता है ना, समझो 7 बजे से 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, तो 9 आवर्स, राइट। तो 9 आवर्स बिताने के लिए उन्होंने क्या आइडिया की, रक्षण करने के लिए, अपना स्वरक्षणार्थम, रात्रौ रक्षणार्थम एकैकः अपि पर्याय रूपेण एकम प्रहरम यावत्, मतलब यावत् बोलेंगे तो टिल 3 आवर्स, अंटिल 3 आवर्स। Yavat means till. जागृत, Yavat means till. यावत इज लाइक टिल, अंटिल हम बोलते हैं ना, 3 घंटे तक। 3 घंटे तक हिंदी में तक बोलते हैं ना, 3 घंटे तक। तो एकम प्रहरम यावत, राइट। यू नो गार्ड इज कॉल्ड एज प्रहरी, नो। क्यों उसको प्रहरी क्यों बोला जाता है पता है आपको? बिकॉज उसका, ही इज अ वॉचमैन, ही इज अ वॉचमैन, मतलब उसका समय के साथ है ना, यू एंगेज। प्रहरी क्या, प्रहरी को फिक्स टाइम होता है, उसको 12 घंटे रहना है, खत्म, फिनिश, राइट। तो उसको समय देखते रहता है वो प्रहरी, मेरा कब समय हो गया, मेरा कब समय हो गया, मेरा कब, यही पूछते रहता है वो प्रहरी। See how this word has come, from prahar, right? Don't we have words like dopahar in Hindi? Huh? Yes. We have words like dopahar. These are all coming from Sanskrit actually. प्रहर का पहर कर दिया है। अच्छा, जागरितः भवेत्, दिस इज अ डिफरेंट लकार, ये डिफरेंट लकार which we don't know, अभी तक हमने किया नहीं है। भवेत क्या है मालूम नहीं है हमारे, राइट। और ये बुक में मालूम भी नहीं होगा, नेक्स्ट बुक में भवेत का क्या मीनिंग है वो है, राइट। लेकिन मैं ये बोलूंगा भवेत इज लाइक वुड बी, राइट। हम लोग जो बोलते हैं ना वुड बी, इट्स नॉट इज, इट्स नॉट इज, he is not awake, he would be awake until 3 hours। आप समझे? जागरितः अवेक, वेरी सिंपल वर्ड, हम पता है हमारे को। जागरितः is awake, so for until 3 hours, in turns, one by one would be awake, राइट। किसके लिए, क्या चीज करने के लिए? रक्षणार्थम। तदा अन्याभ्याम द्वाभ्याम निद्राम कर्तुम शक्यते। तभी दूसरे दो, वी डोंट नो व्हाट इज दिस अन्याभ्याम, Other brothers. क्या है इसका ग्रामर हमको मालूम नहीं, बट
अन्याभ्याम द्वाभ्याम मीन्स दूसरे दो लोगों को, दूसरे दो है ना, उधर तीन है ना, तो एक एक जागता हुआ रहेगा तो दूसरे दो सो सकते हैं, राइट। तदा अन्याभ्याम द्वाभ्याम निद्राम कर्तुम शक्यते इति ते निश्चितवन्तः, निश्चितवन्तः सी निश्चितवान, राइट, दे डिसाइडेड, सभी ने डिसाइड किया, सो निश्चितवान निश्चितवन्तौ, निश्चितवन्तः बहुवचनम, राइट। ये हम तो वेरी इजीली वापरते हैं हिंदी में सब, निश्चय किया, उसने निश्चय किया, आपको मालूम है ना, ये वर्ड मालूम है ना, डिसीजन, डिसीजन विषय है ना, उसने निश्चय किया, सो ही टुक अ डिसीजन, करेक्ट, निश्चय। So where this word is coming from? It's coming from nis, upasarga nis, and the dhatu chi. Chi means to choose. So जब भी आप डिसाइड करते हैं तो क्या करते हैं? What do? You choose ना, मतलब आपको ये एप्पल दिया, बनाना दिया, मैंगो दिया, तो बोलते हैं आप चूज करो, राइट। तो क्या करते हैं आप? निश्चय करते हैं ना कि नहीं मैं एप्पल खाऊंगा, right? So it's a kind of a choice, right? निश्चय करना means to do some kind of a choice, correct? It comes from the chi धातु। तो हमने ये ऑलरेडी सीखा है, चिनोती, प्रथम पुरुष एक वचन में चिनोती, right? And now we know the इक्तवतु प्रत्यय also, निश्चितवान। So they decided that in turns, one by one person will stay awake for 3 hours, other two will sleep. Okay, clear? Good. This ये word का ग्रामर तो हमको मालूम है, because this is coming from the tavatu pratyaya. This is coming from the tavatu pratyaya which we have studied, no? Gatavan, gatavanto, gatavantah. ये हमने पढ़े हैं, करेक्ट? ये पैराग्राफ क्लियर हो गया? तो श्री कृष्ण सात्यकी बलराम वन घूमने के लिए जा रहे थे, उन्होंने एक घना वन का प्रवेश किया, घने वन में प्रवेश किया, रात्रि हो गई, वो रास्ता भटक गए, फिर रात बिताने के लिए एक वृक्ष के नीचे उनको बैठना आ पड़ा, राइट। रात में अपना रक्षण करने के लिए एक प्रहर के लिए जागेगा, बाकी दो सो जाएंगे, राइट। इन टर्न्स, पर्याय रूप में, करेक्ट। गुड, अभी तक स्टोरी इज क्लियर? ओके। किसका फर्स्ट टर्म किसका था? प्रथमः पर्यायः सात्यकेः आसीत्। अब बताइए, सात्यकेः विभक्ति? सात्यके, प्रातिपदिक में सात्यकी, प्रातिपदिक, ये प्रातिपदिकम हुआ, सात्यकेः षष्ठी एकवचनम। किसका पर्याय था? सात्यकी का। सात्यकी इज टर्न फर्स्ट, प्रथमः पर्यायः सात्यकेः आसीत्। गुड, फाइन। सह प्रहरी सन, योर वर्ड प्रहरी सन, वो प्रहरी बनकर खड़ा हो गया, स्थितः, सह प्रहरी सन स्थितः। Now the sun, just 1 second, this one, एक मिनट।
सः प्रहरी सन स्थिरः। तो ये सन जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रहरी होकर खड़ा हो गया, राइट। बीइंग ए वॉचमैन ही स्टूड। आप समझे, ये दिस सन मीन्स बीइंग। Sun means being. बीइंग इट्स इसका व्याकरण हमको बहुत टाइम है सीखने के लिए, लेकिन अभी आप ये वेरी इजी मीनिंग इज बीइंग, लाइक होकर। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना होकर, प्रहरी होकर खड़ा हो गया। प्रहरी सन स्थितः, कौन? सात्विकी, राइट, गुड। सह, वी नो ऑल द विभक्तिज, वी नो, सी सह, तद, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एकवचनम, करेक्ट। स्थितः, सी सह, प्रथमा विभक्ति एकवचनम पुल्लिंग, करेक्ट। सी हाउ इजी इट इज, right? Now the word prahari also is prathama vibhakti ekavachanam. All words are in prathama vibhakti. प्रथमा एकवचनम। सन, इसका भी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एकवचन। All the words are in प्रथमा विभक्ति एकवचन। सः प्रहरी सन स्तः। यदा अन्यौ द्वौ निद्रां कृतवन्तौ, कृतवन्तौ, जो बाकी दो जो जब ही सो रहे थे, तदा वृक्षतः एकः पिशाचः अवतीर्णवान्, नीचे उतर के आया, एक पिशाच उतर के आया। अवतरती, पिशाच का अवतार हुआ। ये जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, अवतार, अवतार, श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है। व्हाट इज अवतार? नीचे उतर के आना, नीचे उतर के जो आया ना, वो अवतार। गेट व्हाट आई एम सेइंग? जो ऊपर था और नीचे उतर के आ गया, दैट इज अवतार। तो अवतीर्णवान, तो एक तो वो तो प्रत्यय है ना, ये त्रु धातु, इट कम्स फ्रॉम दी त्रु धातु। इसका एक तो प्रत्यय में वो जो है ना, गतवान, यू नो, पठितवान, धावितवान, वो तवान तवान होता है ना वहां पर। हमने तो प्रत्यय में तवान तवान देखा ना, प्रविष्टवान। तो इसमें ना, ये धातु में, त्र धातु में अवतीर्णवान, एक देखो इसमें थोड़ा चेंज है, देखिए। Are you able to see this? There is no t here. There is n. There is n. You see that change? अवतीर्णवान। सो वो जो पिशाच है ना, जब भी अन्य दो सो रहे थे, तभी वृक्ष में से, वृक्षतः, फ्रॉम द ट्री, वृक्षतः, वृक्ष से, राइट, कौन निकल के आया? एक पिशाच, पिशाच अवतीर्णवान, वो नीचे उतर के आ गया, वो पिशाच, राइट। क्या करने लगा वो? सह मल्ल युद्धार्थम, सात्यकी मल्ल युद्धार्थम आहुतवान, बोलने लगा कि लड़ो मेरे से आके, मल्ल युद्ध करो सात्यकी को। राइट, क्या बोला कि वो मल्ल युद्ध करो मेरे से। सह आहूतवान, बुलाना, उसने सात्यकी को मल्ल युद्ध के लिए बुलाया। आहूतवान, राइट। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड धातु, आह प्लस वे, द वे धातु। धातु इज वे, बुलाना, बुलाना, वे, धातु इज वे, राइट। आहवयती, इन लट लकार, किसी को बुलाना, आवाहन करना, हम लोग बोलते हैं ना आह्वाहन करना, डोंट वी से आह्वान करना, बुलाना, राइट। सो आहवयती इज द लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, and this is the iktavatu pratyaya roopam, ahutavan. Good.
बहूनी कटुवचनानी उक्तवान च, मतलब बहुत सारे बुरे शब्द भी बोले उसको उसने। वो पिशाच आया और ये सात्विकी को बुलाया कि चल मल्ल युद्ध कर मेरे से, और वो बहुत सारे अपशब्द भी बोलने लगा उसको। राइट, सो सात्विकी को वो पिशाच आके बहुत सारे उसको गालियां भी दी। So, सात्विकी ही तस्य कटुवचनानां कृते तादृशानि एव उत्तराणि दत्तवान। तो इसने उसके जो गालियां सुनी तो ये भी गाली देने लगा उसको। सात्विकी ही तस्य कटुवचनानि कटुवचनानां तस्य, षष्ठी ना, तस्य षष्ठी एकवचनं ना, कटु कटु वचन नानाम, अगेन षष्ठी बहुवचनम ना, कटुवचनानाम कृते, कृते मीन्स अगेन के लिए, उसके कटुवचन के लिए इसने भी कटुवचन दिए। तादृशानी एवं उसी प्रकार के, मतलब उसने गाली दी इसने भी गाली दी, उसी टाइप की गाली इसने भी दी। तादृशानी एवं उत्तराणी दत्तवान, सी दत्तवान, क्लियर, उसने गाली दी इसने भी गाली दी, क्लियर। तादृशानी उसी प्रकार के, उसी टाइप के, जिस प्रकार के उसने गाली दी ना, जिस प्रकार के कटुवचन वो बोला, ये भी उसी टाइप के कटुवचन ये भी बोला। तादृशानी, राइट, तादृशानी मीन्स उसी टाइप के, सेम टाइप। तो तादृशानी है वो उत्तराणी, वो भी उसी प्रकार के उत्तर देते गया उसको। यदा पिशाचः सात्विकेः शरीरं मुष्टिप्रहारं, वो यदा पिशाचः सात्विकेः शरीरं मुष्टिप्रहारं कृतवान, क्या किया उसने? उसने मुष्टि प्रहार किया उसके शरीर के ऊपर, राइट, कौन? पिशाच ने। तदा सात्विकी ही तदुपरी पाद प्रहारं कृतवान, तो उसने हाथ से मारा तो इसने पैर से मारा, राइट, प्रहार अटैक, ये तो ना प्रहार अटैक। तो जब 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 पिशाच ने हाथ से प्रहार किया, हाथ से मुष्टि से प्रहार किया, इसने पैर से प्रहार किया, राइट। यदा पिशाचः सात्विकेः शरीरे मुष्टिप्रहारं कृतवान तदा सात्विकी ही तदुपरि पादप्रहारं कृतवान। किसी शरीरे, हमने लास्ट चैप्टर में देखा है ना कि प्रहार का जो अंग है जिसके ऊपर प्रहार होता है वो सप्तमी में जाता है। We studied in the last chapter ना, राइट, मतलब जिस किसी अंग भाग के ऊपर प्रहार होता है ना वो सप्तमी में जाता है, राइट। तदुपरि पाद प्रहारं कृतवान, पाद प्रहार, इसी मुष्टि प्रहार, मुष्टि प्रहार, बॉक्सिंग करते हैं तो मुष्टि प्रहार करते हैं ना, मुष्टि प्रहार एंड पाद प्रहार, लात मारना, पाद प्रहारं कृतवान। पूर्णं प्रहरं यावत् तयोः मल्लयुद्धं प्राचलत, तीनों घंटे उन्होंने यही किया। वो उसको मार रहा था, ये उसने मारा, वो उसको गाली दे रहा था, ये उसको गाली दे रहा था। पूर्णं प्रहरं यावत्, till for one till the entire, until the end of the entire प्रहर, तयोः मल्लयुद्धं, तयोः सी षष्ठी विवचनम, उनके दोनों का, तयोः मल्लयुद्धं प्राचलत, इसी लंग लकार, your lat lakara is prachalati and लंग लकार is प्राचलत। अभी ये हमने अभी तक सीखा नहीं है कि लंग लकार कैसे करना, जब भी उपसर्ग है तभी, ये उपसर्ग है ना, ये प्र उपसर्ग है, तो ये कंडीशन में हम लंग लकार कैसे करेंगे, हम पढ़े नहीं है, राइट। बट यू सी हियर हाउ इट बिकम्स प्राचलत, नॉट अप्रचलत। आप समझे, हम लोग सह चलती
he is walking. करेक्ट. पास्ट टेंस में क्या बोलते हैं हम लोग? सह अचलत. he walked. करेक्ट. ये अ ऐड करते हैं ना, लास्ट टाइम हमने सीखा है ये अ ऐड होता है ना, लेकिन यहां पर नहीं हुआ. यू सी दैट इन दिस इट बिकेम प्राचलत. ये हम लोग सीखेंगे हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. व्हेन उपसर्ग इज देयर, व्हेन उपसर्ग इज देयर, लंग लकार कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे. राइट. गुड. सात्यके हे शरीरे बहवः क्षताः संजाताः. क्षत, क्षत इज इंजरी. क्षत इज इंजरी. राइट. सो सात्यके हे शरीरे, सात्यकी के शरीर के ऊपर बहुत घाव हो गए. राइट. he had, सात्यकी had many injuries on his body. ये सब मारामारी फाइटिंग में उसके शरीर पे घाव हो गए बहुत सारे. बहवः बहवः क्षताः संजाताः. सह नितराम श्रान्तः, मतलब बहुत 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 थक गया, ये लड़ने झगड़ने में बहुत थक गया. सह नितराम, नितराम, नितराम another word for बहु. सह बहु श्रान्तः. श्रान्तः टायर्ड. सह नितराम श्रान्तः. गुड. किन्तु तस्मिन् समये सहयोगिनोः उत्थापनस्य अपेक्षया निद्राकरणम् एव उचितम् इति विचिन्त्य सः निद्रां कृतवान्. किन्तु किन्तु बट तस्मिन् समये, एट दैट टाइम, तस्मिन्, विनो तस्मिन् न, तद सप्तमी एकवचनम, तस्मिन् समये, विनो समये, अगेन सप्तमी एकवचनम, प्रातिपदिकम समय. करेक्ट ना. तो एट दैट टाइम, तस्मिन् समये सहयोगिनोः उत्थापनस्य अपेक्षया, उनको दोनों को, उसके जो दो जो साथी है ना, सहयोगी हैं, राइट, उनको जगाने से सो जाना उसको बेहतर लगा. आप समझे? ये सब गड़बड़ हो गई उनको, ये जो झगड़ा हो गया उन, ये इसके कारण उनको जगाने से, वो दोनों को जगाने से खुद मैं सो जाता हूं, उसे ऐसे सोचा. राइट. सो किंतु तस्मिन् समये सहयोगिनोः उत्थापनस्य, उत्थापन जगाना, उत्थापन टू वेक अप, action of waking up is utthapana. Yeah, good. सहयोगिनोः उत्थापनस्य अपेक्षया, इन कंपैरिजन विथ, मतलब दो चीजें, उनको जगाएं या मैं खुद सो जाऊं. सो उसमें ये दोनों में पर्यायों में उसको लगा कि मैं सो जाऊं बेटर है. उनको जगाने का क्या, भी तो उठने वाले हैं ना, ये मेरा तो प्रहर हो गया. सो जाएगा तो पिशाच मार नहीं देगा उसको. नहीं, वो एक उठ जाएगा ना इसमें से, उसका प्रहर हो गया ना. अच्छा अच्छा. उसका प्रहर जो है ना वो हो गया है ना, तो अभी एक उठ जाएगा इसमें से, तो मैं सो जाता हूँ, दूसरा तो उठेगा ही ना प्रोटेक्शन के लिए. करेक्ट. तो उत्थापन सहयोगिनोः उत्थापनस्य अपेक्षया निद्राकरणम् एव उचितम, सोना अच्छा है, सोना उचित है. इति विचिन्त्य सह निद्रां कृतवान्, सो गया. राइट. गुड. द्वितीयः पर्यायः बलरामस्य आसीत्. सेकेंड टर्न किसका था? बलराम का था. यह पर्यायः बलरामस्य आसीत्. तमपि पिशाचः मल्लयुद्धार्थम् आहूतवान्. उसको भी बुलाया इसने, पिशाच ने, चल आजा फाइटिंग. कटुवचनैः निंदितवान् च, उसको भी गाली देने लगा. कटुवचनैः निंदितवान्. सी हियर, निंदति is to scold. निंदितवान. See, निंदति, निंदा करना. This is लट लकार. ये इक्तवतु प्रत्यय है. निंदितवान, तो उसको भी उसने
उसकी भी निंदा की कटु वचन से। मल्ल युद्धे महावीरेण बलमरामेण अपि सा एव गतिः प्राप्ता। वो मल्ल युद्ध में मल्ल युद्ध करने लगे दोनों, राइट। और वो वहां महावीर बलराम की भी वही गति हुई जो सात्यकी की हुई थी। इसने भी मार खाया अच्छा सा, इसने भी मारा वो पिशाच को, लेकिन उसने भी इसको मारा। मल्ल युद्धे महावीरेण बलरामेण अपि सा एव गति ही प्राप्ता, वही गति प्राप्त हुई इसको भी। श्रान्तः सह अपि प्रहरान्ते निद्राम कृतवान। सो प्रहर के अंत में वो भी सो गया, वो सात्यकी जैसे, राइट। सेम स्टोरी हैपेंड, जो सात्यकी का हुआ ये इसका भी, बलराम का भी यही हुआ। और प्रहर के अंत में वो सो गया। अभी कौन किसका पर्याय रह गया? अभी किसका? एक ही बचा था ना, श्री कृष्ण, करेक्ट। एक ही बचा था ना, श्री कृष्ण सिर्फ बचा था ना। तो लास्ट टर्म किसका था? तृतीय पर्याये श्री कृष्ण सुरक्षा निमित्तम आगतवान। श्री कृष्ण आ गए सुरक्षा के लिए, सुरक्षार्थम, सुरक्षा सुरक्षणार्थम। another method of saying is what? Suraksha nimittam. Suraksha nimittam, for the purpose of. Surakshanartham va suraksha nimittam, right? Surakshartham, this is also fine. Surakshartham, for the purpose of suraksha, for the purpose of protection. इसका पर्याय था, थर्ड पर्याय श्री कृष्ण का था, तो वो आ गए। अभी क्या होता है देखते हैं हम। तमपि पिशाच मल्ल युद्धार्थम आहुतमान, उसको भी बुलाया पिशाच। श्री कृष्ण को भी बोलने लगा, चलो आ जाओ मल्ल युद्ध करते हैं। कृष्ण हसन एव युद्धम कर्तुम आरब्धवान। कृष्ण तो हंसते हंसते, ये तो बहुत सीरियस हो गए गुस्सा आ गया इनको, सात्यकी और बलराम को, लेकिन इसको गुस्सा नहीं आया, वो शांत था। हसन एव युद्धम कर्तुम आरब्धवान, हंसते हंसते उसने युद्ध करना शुरू किया। किसने? श्री कृष्ण ने। उक्तवान च, उसने क्या बोला? श्री कृष्ण बोले, भवान बहु विनोद प्रिय इव भासते। बहु विनोद प्रिय, तुम तो बहुत तो बोलते हैं कि मजाक किया हो, यू आर वेरी फनी। कौन बोला? श्री कृष्ण बोले वो पिशाच को। भवान बहु विनोद प्रिय इव भासते। विनोद प्रिय, दिस वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड विनोद। आपको पता है विनोद का अर्थ क्या है हिंदी में? विनोद, लाफिंग टाइप। करेक्ट ना, लाफिंग टाइप ना बोलते हैं हम लोग, राइट। बट इसका जो एक्चुअल है ना, ये लाफिंग टाइप नहीं है। हैप्पी। हाँ, हैप्पी। विनोद इज सपोज टू बी हैप्पी इन हिंदी। हमको ये अर्थ पता है हिंदी भाषा में या मराठी भाषा में, विनोद मीन्स हैप्पी और जोकिंग, करेक्ट ना? करेक्ट, विनोद मीन्स जोकिंग और हैप्पी, राइट। बट इसका जो संस्कृत भाषा में एक्चुअली मीनिंग, या फिर इवन हिंदी भाषा में या मराठी भाषा में, ये नहीं है। The word विनोद comes from V, उपसर्ग, एंड द नुद धातु। नुद धातु क्या है पता है आपको? किसी को हिलाना इज नुद। किसी को हिलाना ना इज नुद। धातु नुद इज टू नज। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ना टू नज। नो, इंग्लिश इज अ वर्ड कॉल्ड टू नज। देयर इज अ वर्ब टू नज। किसी को मतलब पुश करना इज टू नज, राइट? सो विनोद, द वर्ड विनोद, the kriyapadam is vinudati.
ओके, दिस मीन्स किसी को हिलाना. सो विनोद मीन्स किसी को हिला के हिलाए रखना इज विनोद. द एक्शन ऑफ शेकिंग somebody इज विनोद. ओके, तो वो क्या बोलता है, देखिए आप. भवान विनोद प्रिय इव भासते. आप तो विनोद प्रिय ऐसे लग रहे हैं. दैट मीन्स यू लुक लाइक, तुमको हिलाना पसंद है, किसी को जाके हिलाना पसंद है तुम्हारे, राइट. मम निद्राम आलस्यम च दूरीकर्तुम एव भवान मित्रम इव विनोदम कुर्वन् अस्ति. तुम तो मुझे मेरा आलस्य को भगाने के लिए, मेरी निद्रा को भगाने के लिए तुम मुझे हिलाने के लिए आए हो. He takes it in a positive sense. तुम समझे, आप समझे. वो क्या बोलता है कि तुम मुझे आए हो मेरे मेरे आलस्य को और निद्रा को भगाने के लिए, ऐसे लग रहा है मुझे तुम विनोद प्रिय हो. You see the difference between the standard meaning of vinoda and the meaning of vinoda here. आप फर्क समझते हैं. The actually vinoda means किसी को हिलाना, right? Okay. So मम निद्राम आलस्यम च दूरी कर्तुम, भगाने के लिए, राइट. भवान मित्रम इव, तुम मेरे दोस्त जैसे, विनोदम कुर्वन् अस्ति, तुम मुझे हिला रहे हो, तदा पिशाचस्य बलम न्यूनम जातम. जब इसको क्रोध नहीं आया, श्री कृष्ण को क्रोध नहीं आया है ना, वो शांत था, हंसते हंसते कर रहा था युद्ध, राइट. तो पिशाच का जो बल है ना, वो न्यूनम जातम, कम हो गया. पिशाच का बल कम हो गया. तस्य शरीरम अपि संकुचत गतम, उसका जो बड़ा शरीर था ना, वो छोटा 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 श्रिंक हो गया वो पिशाच. जस्ट एक मिनट, कोई दरवाजे पर है, एक मिनट. सो तस्य शरीरम संकुचत गतम, उसका बड़ा शरीर जो था वो श्रिंक होते गया. संकुचत, श्रिंक, संकुचत गतम, श्रिंक हो गया, राइट. अंते अंते सह झिल्लिका इव, स्मॉल इंसेक्ट झिल्लिका, छोटा जो इंसेक्ट है ना, झिल्लिका, राइट. इव लघु शरीर जाता, वो एक छोटा इंसेक्ट जैसे हो गया, झिल्लिका जैसे. लघु शरीर जाता, इतना बड़ा था वो पिशाच, लेकिन छोटा 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 होते गया, उसका बल भी क्षीण होते गया. तदा श्री कृष्ण तम स्वस्य उत्तरीयस्य अंचले बद्धवान. तो उसने क्या किया, श्री कृष्ण से उसको पकड़ा और उसको उत्तरीयम, जो ऊपर का जो भाग में जो वस्त्र पहना जाता है ना, उत्तरीय वस्त्रम बोलते हैं, मतलब शॉल टाइप, जो पहनते हैं ना, उत्तरीयम. उत्तरीयम इज द अंगवस्त्र, जो ऊपर से ओढ़ते हैं ना, तो वो उत्तरीयम. तो उत्तरीयस्य अंचले, अंचल बॉर्डर, अंचलम, राइट. तो वो जो उसका उसका जो वो जो वस्त्र है, उसका जो बॉर्डर है ना, एंड में, अंचले अंचले बद्धवान, उसको बांध दिया उसने, श्री कृष्ण ने. वो पिशाच को वो कपड़े में बांध दिया, एंड में, एट द एंड ऑफ द शॉल बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, शॉल. बद्धवान, राइट, गुड.
प्रातः यदा ते प्रस्थिताः, प्रातः सुबह मॉर्निंग, यदा ते प्रस्थिताः जब भी वो निकल गए तदा सात्यकिः बलरामः च पिशाचेन सह रात्रौ संजातस्य मल्लयुद्धस्य वर्णनं कृतवन्तौ। तो ये दोनों ने ना तब तो थक गए थे, रात को तो थक गए थे झगड़ झगड़ के गाली दे दे के थक गए थे। तो क्या किया फिर जब ही निकल पड़े तभी ये दोनों बोलने लगे। उनका जो रात रात को जो ये मल्ल युद्ध वगैरह वगैरह जो हुआ उसका वर्णन करने लगे, राइट, वर्णन किया, राइट। यदा ते प्रस्थिताः तदा सात्यकी बलरामः च, नो टू पीपल आर देयर ना, सात्यकी एंड बलराम च पिशाचेन सह रात्रौ संजातस्य मल्लयुद्धस्य वर्णनं कृतवन्तौ। व्हाई कृतवन्तौ? बिकॉज टू पीपल आर देयर, दो लोगों ने किया वर्णन, तो कृतवन्तौ। तेन संजातान क्षतान अपि दर्शितवन्तौ। जो जो शरीर में जो जो घाव लगे थे वो भी दिखाए, देखो इधर लग गया, इधर लग गया, राइट। तेन संजातान क्षतान अपि दर्शितवन्तौ, उसी क्षतान द्वितीय बहुवचनम ना, द्वितीय बहुवचनम क्षतान संजातान, द्वितीय बहुवचनम। तेन संजातान क्षतान अपि दर्शितवन्तौ, द्विवचनम ना, टू पीपल आर टॉकिंग ना, दो लोगों ने दिखाया ना, दर्शितवन्तौ, राइट। श्री कृष्ण हसन पिशाचम उत्तरीयस्य अंचलतः निष्कास्य करतले स्थापितवान। उसने क्या किया? हंसते हंसते श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण हसन पिशाचम उत्तरीयस्य अंचलतः, मतलब जो जहां बांधा था ना उसने, वो शॉल के एंड में जहां बांधा था उसमें से निकाल कर, निष्कास्य, निष्कास्य बाहर निकाल कर, करतले स्थापितवान, उसके पाम पाम पे, हाथ पे रख दिया। वो पिशाच को निकाला, हाथ पे रख दिया, राइट। उक्तवान च एषः अस्ति क्रोध पिशाचः। बोलते ये इसका नाम है क्रोध पिशाच, राइट। ये जो पिशाच है ना, छोटा सा अभी हो गया है, ये है क्रोध पिशाच। तो क्रोध पिशाच क्या है? एतस्य प्रवृत्तिः, एतस्य प्रकृतिः एषा अस्ति, इसकी प्रकृति ऐसा है, ऐसी है। एतस्य, इसका, इसकी प्रकृति ऐसे है, एषा अस्ति प्रत्युत्तरदानेन, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर आंसर, मतलब जवाब देने पर, प्रत्युत्तरदानेन, प्रत्युत्तरदानस्य एषः वर्धते, ये बड़ा होते जाता है। जितना आप उसको रेस्पॉन्ड करो ना इतना ही बड़ा हो जाता है वो। एषः वर्धते उग्रताम च प्राप्नोति, वो उग्र हो जाता है, उसको उग्रता प्राप्त होती है। उग्रताम च प्राप्नोति, उसको अगर जवाब दो ना, इन्होंने बोला चल मल्ल युद्ध करेंगे, जब चलो ये भी बोले मल्ल युद्ध करेंगे, चलो उसने गाली दी, इन्होंने भी गाली दी, तो प्रत्युत्तर दिया, प्रत्युत्तर दिया, करेक्ट ना। तो प्रत्युत्तर दाने ना एषः वर्धते, ये बढ़ता है, ये बड़ा हो जाता है, राइट। उग्रताम जब प्राप्त होती है मतलब एग्रेसिव हो जाता है, गुड। किंतु यदि उपेक्षाम कुर्मः, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, उपेक्षा। उपेक्षा क्या होता है मीनिंग? Neglect. निग्लेक्ट, वेरी नाइस। तो उपेक्षाम कुर्मः, यदि वयम उपेक्षाम कुर्मः, मतलब अगर हम उसको निग्लेक्ट करेंगे, उसको ध्यान ही नहीं देंगे उसके ऊपर, तर्हि सह स्वयमेव दुर्बलः भवति, वो खुद ब खुद दुर्बल हो जाता है। अगर उसकी उपेक्षा करो, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड उपेक्षा, इट कम्स फ्रॉम उप ईक्षा,
right? Iksha means sight. Upa means something close by. Upanagaram, you know ना, उपनगरम जो नगर के नजदीक है वो उपनगर है, right? उपेक्षा is the sight of something which is close by. मतलब आप समझो कि आपके नाक पर इधर कुछ बैठा हुआ है, दिखेगा? या फिर समझो ये इधर इधर ये आग के बराबर ऊपर कुछ बैठा है, सब कुछ है, तो दिखेगा आपको? Can you see it? No. Suppose यहाँ बैठा है तो नहीं दिखेगा. That means something which is close by that you cannot see, it is neglected. See how beautiful the word is. Upeksha means neglect, you know, or avoiding is also upeksha, right? So अगर उसकी उपेक्षा की जाए तो वो स्वयं दुर्बल हो जाएगा, right? किंतु यदि उपेक्षां कुर्मः कस्य तस्य पिशाचस्य उपेक्षां कुर्मः तर्हि सः स्वयमेव दुर्बलः भवति, लघु रूपं प्राप्नोति, वो छोटा हो जाएगा. लघु रूपं प्राप्नोति इति, राइट? क्रोध पिशाच स्वरूपं तदा ज्ञातवन्तौ सात्यकी बलरामौ. You see a beautiful way of saying Satyaki and Balarama. You know that, you know, how can you say it? You can say Satyaki Balarama च, ये तो बोल ही सकते हैं, सात्यकी and Balarama, correct? But another way of saying it is सात्यकी, मतलब इसका प्रातिपदिकम लिया, इसका भी प्रातिपदिकम लिया, और कितने लोग हैं पूछा, ये तो 2 लोग हैं ना, तो add the द्विवचन ending. देखा आपने? सात्यकी ही बलरामः च can be also be written as सात्यकी बलरामौ. Or suppose, you know, you want to say सात्यकी ही बलरामः कृष्णः च, सपोज ये बोलना है, तो क्या करेंगे? इसका प्रातिपदिकम लेंगे सात्यकी, इसका प्रातिपदिकम लेंगे बलराम, इसका प्रातिपदिकम लेंगे कृष्ण. अभी कितने लोग हैं? 3 है, तो बहुवचन ऐड कर देंगे इसको. सात्यकी बलराम कृष्णा. You see 2 ways of saying the same thing. 2 ways. इसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास. ये जो way of making combination of words ना, is called द्वंद्व समास, right? So if you want to say Rama, so for example you want to say Ramah, Lakshmanah, Bharatah, शत्रुघ्नः च, कैसे बोलेंगे बताइए? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नः. The last word ना, कि शत्रुघ्न will go into बहुवचन. Right? You see that here, Satyaki Balaramau. That means Satyaki Balaramah cha. Now, and there are 2 people. So, Nyatavantau. Dvivachana. Right? Rodapishachasya Swarupam. Tada Nyatavantau Satyaki Balaramau. Right? Nice things are learned. We can learn from this lesson. From this beautiful story. Beautiful story. And this is very true with क्रोध, ना. Suppose कोई क्रोध से आता है तो हम और क्रोधित होंगे तो फिर वो बढ़ते जाएगा और क्रोध भी बढ़ते जाएगा, फिर हमारी
हमारी क्षति होगी उससे, we'll get hurt, right? ये ज्ञान ज्ञान की बात है. ज्ञान की बात है, एग्जैक्टली. सो एवरीथिंग हैज टू बी हैंडल्ड कामली, शांति से, राइट? ओके, ओके, आई थिंक वील स्टॉप हियर. वील नॉट डू द अभ्यास. नेक्स्ट टाइम जब भी कंडन जी होंगे तभी अभ्यास करेंगे. बट आई वांट यू टू डू द अभ्यास ऑन योर ओन आल्सो. करेंगे होमवर्क. Bye. वेरी गुड. चलिए, थैंक यू सो मच.